Hello students, in this question we have to consider the set A of all determinant of order with entries 0 or 1 only. Okay. Now let B be the subset of A consisting of all determinants with value 1. Let C be the subset of set of all determinant with value -1. Then what will be the answer? Okay. So now here we can say, so now we will see that what we have given is that consider the set A of all determinant of order 3 with entries 0, 1 only. Okay. So now we know that the interchange of two adjacent rows or columns changes the value of A determinant. Changes the value of A determinant only in signet, not in a magnitude. Okay. Hence, corresponding to every element delta of B, there is an element delta dash in C obtained by interchanging two adjacent rows or columns in delta. Right? Understand? So I will repeat. Here we have given is that consider that the set A of all determinants of order 3 with entries 0 or 1 only. Okay. So we know that the interchange of two adjacent rows or columns changes the value of A determinant only in signet, not in magnitude. Let B be the subset of A consisting of all determinant with value 1. Means, hence corresponding to every element delta of B, there is an element of delta dash in C. Let C be the subset of the set of all determinant with the value of -1. Okay. So delta in C obtained by the interchanging two adjacent rows or columns in delta. Right. So it follows that NB is greater than this. That is the number of element in B less than or equals to the number of elements in C. Okay. That is the number of elements in B and less than or equal to the number of elements in C. Now similarly, we can write NC is this, right? Hence, here we have seen that NB is equals to number of elements C. That is, B has as many elements as C. It means B has a many elements as C. Okay. It means the set A will also have determinant with value 0. The set A of all the set A will also have determinants with value 0. Okay. Hence, we can say that B has a many elements as C. So this is our final answer. Okay. This will be our final answer. Thank you. Hi guys, हमारा क्वेश्चन है which of the following is or are not the square of a 3x3 मैट्रिक्स with real entries। तो हमसे कहा गया है कि बताओ इन चारों ऑप्शंस में से ऐसे कितने ऑप्शन होंगे जो किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं होंगे। नॉट, तो ये बताना है कि इन चारों में से कौन से मैट्रिक्स स्क्वायर 3x3 मैट्रिक्स का नहीं होगा। ठीक है, तो सपोज कर लो कि मेरा जो लेट ए मैट्रिक्स है कोई, वो बराबर है बी स्क्वायर के, वेयर बी इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें बताना है ए जो होगा वो इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक होगा। तो हमें बताना है ए की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू होगी इन चारों ऑप्शंस में से। तो ये मैंने मान लिया, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर होगा, और मैं कह सकती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ बी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो एक स्क्वायर नंबर के स्क्वायर के बराबर है। तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इन चारों में से जब जिसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होगा ना वो स्क्वायर होंगे, और जिनका नहीं होगा वो नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 डिस्कस करते हैं पहले। यहाँ पे मुझे ए दे रखा है 1 0 0 0 1 0 0 0 -1। निकालो ये कितना हो जाएगा, इसको एक्सपेंड कर दो अलॉन्ग फर्स्ट रो, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -1 -0 प्लस 0, तो ये आ गया -1। तो ये क्या है, ये लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो यानी कि ये स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 डिस्कस करते हैं अब। ऑप्शन नंबर 2 वो है मेरा ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1।
अब तुम इसको एक्सपेंड कर दो अलॉन्ग फर्स्ट रो, तो ये मेरा हो जाएगा 1 इंटू -1 प्लस 1 -0 प्लस 0, तो ये आ गया 1, तो ये पॉजिटिव है, तो ये स्क्वायर हो सकता है, तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन 3 डिस्कस करते हैं। ये है मेरा a इज इक्वल्स टू -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1, तो ये मेरा होगा डिटर्मिनेंट ऑफ है यहाँ पे, ये मेरा हो जाएगा -1 टाइम्स 1 -0 प्लस 0, तो ये भी नेगेटिव आ गया, ये भी लेस देन 0 है, तो ये भी स्क्वायर नहीं हो सकता, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 भी होगा। अब ऑप्शन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा मेरा a इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ पे तुम अगर निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 टाइम्स 1 -0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 1, तो ये पॉजिटिव है, तो ये स्क्वायर हो सकता है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, तो इसके 2 करेक्ट आंसर होंगे, ऑप्शन 1 ऑप्शन 3। थैंक यू। हेलो गाइज, हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि लेट P बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ठीक है, तो 3/3 का एक मैट्रिक्स P है हमारा। अब क्या बोला है, सच दैट कि ऑल द एंट्रीज ऑफ P आर फ्रॉम द सेट ऑफ -1 0 और 1। ठीक है, तो जो इसके एंट्रीज होंगे, ठीक है, P वाले मैट्रिक्स के, उसका हमारा एंट्रीज क्या क्या हो सकता है, -1 0 या 1, इन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक है, अब बोला है कि तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट P का क्या होगा ये बताओ। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ P क्या होगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले देखो, P हमारा क्या है, 3/3 का मैट्रिक्स है एक। मान लो P जो है, अपन डिटर्मिनेंट का मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ P अगर मैं निकाल लूँ तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे इंट्रीज लिख लेता हूँ डिटर्मिनेंट का। तो मान लो वो है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 के टाइप पे है। ठीक है, अब अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले A1 के अबाउट एक्सपेंड करूंगा डिटर्मिनेंट को, तो A1 के अबाउट एक्सपेंड करो तो क्या हो जाएगा, ये देखो A1 वाले रो और A1 वाले कॉलम को छोड़ूंगा तो B2 इंटू C3, तो B2 इंटू C3 माइनस C2 इंटू B3, यानी कि B3 इंटू C2, ये लिखूंगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, A2 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो माइनस A2, इसके रो इसके कॉलम को छोड़ा तो B1 इंटू C3 माइनस C1 इंटू B3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो A3 के अबाउट एक्सपेंड करो, तो A3 के अगर अबाउट एक्सपेंड करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, तो ये रो और ये कॉलम को छोड़ा तो B1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू B2। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, B2 इंटू C1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस, फिर इससे मल्टीप्लाई करो A2 से, तो A2 B1 C3 और ये माइनस माइनस प्लस A2 B3 C1 और ये प्लस A3 से मल्टीप्लाई करो, A3 B1 C2 माइनस A3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो A3 B2 C1। अब अपन क्या करते हैं, जो पॉजिटिव वाले टर्म है उसको एक साथ लिख लेते हैं। तो हमारा पॉजिटिव वाला टर्म क्या है, A1 B2 C3, फिर क्या है A2 B3 C1 और फिर क्या है हमारा A3 वाला, यानी कि A3 B1 C2। एक पॉजिटिव वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं, जो माइनस वाले टर्म है उससे माइनस कॉमन लेके और यहाँ पे फिर लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, A1 B3 C2 प्लस A2 B1 C3, ठीक है, प्लस A3 B2 और C1, ये आ जाएगा C1। ठीक है, तो ये टर्म हमारे आ जाएंगे। ओके, अब इसके बाद जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू, P के डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये आया। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले टोटल को मान लो एक नंबर x मान लो, और इस टोटल को जो कैलकुलेट करने के बाद नंबर आएगा इसको y मान लो। ठीक है, अब देखो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, अगर मेरे इस डिटर्मिनेंट को मेरे को मैक्सिमम बनाना है, ठीक है, तो अगर मैक्सिमम बनाना है और इसका जो एंट्रीज है यानी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, इन्हीं में से कोई एक होगा, -0 और 1 में से। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, अगर मेरे को डिटर्मिनेंट ये आया है दिस माइनस दिस यानी कि x माइनस वाई, ठीक है, ऐसा कुछ आया है, तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया है, x माइनस वाई के फॉर्म में, और जो एंट्रीज है वो 1 -1 0 और 1 के फॉर्म में ही आ सकता है। ठीक है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो इन्हीं में से कोई होगी और इन सब की वैल्यू में से इन्हीं में से कोई होगी। तो देखो x मैक्सिमम क्या हो सकता है, x अगर मैं मैक्सिमम क्या लिख सकता हूँ, जब मेरा ये तीनों क्या हो जाए 1 1 1, हमें डिटर्मिनेंट को मैक्सिमम बनाना है, तो देखो इसको मैं तीनों को 1 बना देता हूँ। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा और इन सबको मैं -1 बना देता हूँ, तो क्या हो जाएगा -3, तो माइनस और माइनस +3 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे डिटर्मिनेंट का 6 पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम है, बाय ऑब्जर्वेशन अपन देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमारा पॉसिबल है 6। और वो कब पॉसिबल है? जब x मेरा क्या हो जाए, x मेरा 3 हो जाए, यानी कि 3 या 3 से बड़ा हो जाए, ठीक है। और y हमारा क्या हो जाए, सॉरी यहाँ पे x हमारा 3 या 3 से छोटा ही होगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम इंक्रीज 1 है, ठीक है। तो x हमारा क्या हो जाए, 3 या 3 से छोटा, और y हमारा क्या हो जाए, -3 या 3 से -3 या -3 से बड़ा, ठीक है। तो ये हमारा y हो जाए, यानी कि दोनों एक समय पे मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, 3। तो जब मेरा x अगर 3 हो जाए और y एग्जैक्टली मेरा -3 हो जाए, तब हमारा क्या पॉसिबल है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, जो कि 6 के इक्वल है, ठीक है। और देखो ये x इक्वल टू जो 3 आएगा वो तभी आएगा जब ये इसका भी हमारा वैल्यू 1 हो जाए, इसका भी 1 हो जाए और इसका भी 1 हो जाए। और ये 1 तभी आएगा जब हमारा a1 का वैल्यू 1 आ जाए, b2 का वैल्यू 1 आ जाए और c3 का वैल्यू भी 1 आ जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ, x मेरा तभी x इक्वल टू 3 तभी पॉसिबल है व्हेन a1 भी मेरा 1 आ जाए, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, b2 c3, b2 भी 1 आ जाए, c3 भी 1 आ जाए, ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। और फिर a2 b3 c1, a3 b1 c2, ये सब के वैल्यू 1 1 1 1 सब आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a1 हमने 1 बोला, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर इसको -1 मेरे को करना है, इसको भी -1 करना है, इसको भी -1 करना है, तभी y मेरा -3 आएगा। तो इसको -1 करने के लिए मैं क्या करूंगा, a1 को भी -1 होना पड़ेगा, b3 को भी -1 और c2 को भी -1। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला a1 को 1 होना पड़ेगा, और यहाँ बोल रहा हूँ a1 को -1 होना पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहा हूँ a1 को -1 होना पड़ेगा, ठीक है। और क्या बोल रहा हूँ कि b3 को -1 होना पड़ेगा और c2 को -1 होना पड़ेगा, ठीक है। अभी फर्स्ट वाले टर्म को ही देखते हैं, इन दोनों में से x और y को। तो अभी कॉन्ट्राडिक्शन मेरे को दिख गया, यहाँ बोल रहा हूँ a1 को 1 होना पड़ेगा, यहाँ बोल रहा हूँ a1 को -1 होना पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि एक ही टाइम पे a1 मेरा क्या हो जाए, 1 हो जाए, और एक ही टाइम पे a1 मेरा -1 हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा, ये जो हमने माना है कि मैक्सिमम वैल्यू जो डिटर्मिनेंट का वो 6 होगा, ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है, देखो नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए x मेरा क्या था, 3 या 3 से छोटा हो सकता था। तो अब वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर 3 नहीं होगा तो x मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x मेरा इसके नीचे जस्ट हमारा क्या है, 2 है। और ये क्या है मेरा, y को क्या होना पड़ेगा, y -3 या -3 से बड़ा होना पड़ेगा। तो इसका नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो x मेरा 2 हो सकता है और y -2 हो सकता है, नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू। तो ये x -y हमारा क्या आ जाएगा, उस समय डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू, जब ये 2 और ये -2, तो 2 -2 यानी कि 4, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमारा आ गया 4 के इक्वल। और वो 4 बनेगा कैसे, तो डिटर्मिनेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू मेरे को 4 बनाना है, वो बनेगा कैसे, जब ये तीनों क्या हो, 1 हो, ये -1 हो, ठीक है, और ये मेरा यहाँ पे -1 हो, ठीक है। यानी कि किसकी वैल्यू -1 मैंने किया है यहाँ पे, b1 का, और यहाँ पे c2 का, ठीक है। तो ये देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया था, हमारा सबसे शुरू में आया था a1 b2 c3, ठीक है। तो a1 हमारा ये 1 है, b2 हमारा क्या है, 1 है, और c3 भी ये 1 है। तो ये टोटल मल्टीप्लाई होकर 1 आ गया, प्लस फिर क्या है हमारा a2 b3 c1, तो a2 1 है, फिर हमारा क्या था a2 b3 और c1, तो a2 1 b3 1 और c3 1, तो ये भी 1 आ गया, प्लस फिर क्या है हमारा, सॉरी c1 था, वो c1 भी 1 ही था, तो a3 b1 c2, a3 b1 a3, ठीक है, a3 b1 और c2, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 -1 और -1 तीनों मल्टीप्लाई होकर फिर से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म आ गया माइनस, अब देखो जो सेकेंड में क्या है, a1 b3 c2, a1 ठीक है, b3 और c2, ये देखो तो 1 1 -1 तीनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, -1। फिर देखो क्या है, a2 b1 c3, a2 b1 और c3, देखो 1 -1 और 1 यानी कि मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, -1। फिर क्या है, फिर हमारा इसके बाद a3 b2 c1, a3 b2 c1, a3 b2 और c1 तीनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 1, तो +1। तो ये हमारा देखो ये 4 बन रहा है, कैसे, ये -1 से ये +1 कैंसिल, तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे माइनस ऑफ -1 यानी कि +1। तो ये देखो डिटर्मिनेंट हमारा 4 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 4 है, और वो ऐसे बनेगा जब हमारी लिमिट 1 और -1 हो, सारे एंट्रीज, कोई भी लिमिट 0 ना हो। थैंक यू। In this question for positive number x, y and z, we have to find the numerical value of the determinant 1 log xy log xz log yx 1 log yz
log zx, log zy एंड 1। तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है log m बेस n को हम लोग लिख सकते हैं log n अपॉन log m। सिमिलरली अगर यहाँ पे log x बेस y है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ y अपॉन log ऑफ x। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या दिए हुए हैं यहाँ पे log 1 log x टू द बेस y टू द पावर एंड log x z। सिमिलरली सेकेंड रो में क्या है log y टू द बेस x 1 log z टू द बेस y एंड थर्ड रो में एलिमेंट्स कौन से हैं log x टू द बेस z log y टू द बेस z और 1। तो इस वाले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं log y x को 1 log ऑफ y अपॉन log ऑफ x और थर्ड एलिमेंट को क्या लिख सकते हैं log ऑफ z अपॉन log ऑफ x। सिमिलरली सेकेंड रो वाले एलिमेंट्स को हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ x अपॉन log ऑफ y 1 और इस वाले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ z अपॉन log ऑफ y। सिमिलरली थर्ड रो वाले एलिमेंट्स को हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ x अपॉन log ऑफ z log ऑफ y अपॉन log ऑफ z और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 1 के इक्वल। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो 1 वाली टर्म को हम लोग लिख सकते हैं log x अपॉन x। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास log ऑफ x अपॉन log ऑफ x log ऑफ x अपॉन log ऑफ y और ये वैल्यू आ जाएगी ये वाली टर्म क्या है log ऑफ y अपॉन log ऑफ x है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे log ऑफ y अपॉन log ऑफ x और यहाँ पे टर्म क्या है log ऑफ z अपॉन log ऑफ x। सेकेंड रो में देखते हैं कौन सा एलिमेंट है log ऑफ x अपॉन log ऑफ y। इस वाले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं log y अपॉन log y log y अपॉन log ऑफ y और थर्ड एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे log ऑफ z अपॉन log ऑफ y। सिमिलरली इस वाले टर्म को थर्ड रो में अगर देखें तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं log z अपॉन log z। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास log ऑफ x अपॉन log ऑफ z। सेकेंड रो वाली कौन सी टर्म है log ऑफ थर्ड रो वाली log ऑफ y अपॉन log ऑफ z और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी log ऑफ z अपॉन log ऑफ z। तो इस रो से हम लोग देखें क्या कॉमन ले सकते हैं 1 अपॉन log x। सेकेंड रो से देखें तो 1 अपॉन log y कॉमन ले सकते हैं क्योंकि तीनों एलिमेंट में कॉमन log y है। सिमिलरली इस रो से थर्ड रो से हम लोग 1 अपॉन log z कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितने एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे log ऑफ x log ऑफ y log ऑफ z। तो डिटर्मिनेंट में कौन सी टर्म बच जाएगी हमारे पास mod ऑफ log ऑफ x log ऑफ y log ऑफ z। सेकेंड रो में कौन सी एलिमेंट आएगी log ऑफ x log ऑफ y log ऑफ z और थर्ड रो में एलिमेंट आ जाएंगी हमारे पास log ऑफ x log ऑफ y log ऑफ z। तो इस वाले डिटर्मिनेंट को इसमें देखें तो तीनों जो है इक्वल एलिमेंट हैं। तो अगर हम लोग r1 माइनस r2 माइनस r3 करें तो यहाँ पे वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन log x इंटू log y इंटू log z इंटू 0। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 के इक्वल। तो वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।